Hello, good evening, good afternoon, good morning, wherever from the corner of the world you're watching us. We're the Uncapped Indians, and it's Saturday, and we're back. Today's episode is going to be a little different. We are going to talk about the domestic cricket in India, the structure of domestic cricket, the various leagues that happen across the domestic game, and a few interesting news that has been announced by BCCI. Just to give you guys a heads up, from the 5th of September, we have the Duleep Trophy that is starting. This time, the Duleep Trophy is going to be a little different than the zonal contest. It's going to be divided as India A, B, C, and D. 1st of October is the Irani Trophy, Rest of India versus Mumbai, happening at the Wankhede. From the 23rd of November, we'll have Syed Mustaq Ali Trophy. From the 21st of December, we'll have the Vijay Hazare. And from the 11th of October till the 27th of Jan, we'll have the Ranji Trophy in two phases. The first phase will have the league games, and the second phase will have your knockout stages. कुछ अहम सवाल से शुरू करेंगे हम एंड मेरे को बताना if you guys have an opinion on it, and I'll start with you, Krishna. अभी एक अनाउंसमेंट हुआ था, बीसीसीआई ने बोला था कि हम टॉस नहीं करेंगे अंडर 23 टूर्नामेंट्स में. हम क्या करेंगे कि जो विजिटिंग टीम आएगी उसे डिसाइड करने देंगे कि आपको पहले बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है. व्हाट डू यू थिंक, इज दैट अ गुड आउटलुक टुवर्ड्स रणजी ट्रॉफी? यार जब भी कुछ नया होना होता है तो ऑब्वियसली आई थिंक इट ऑलरेडी मेक्स सेंस कि आप अंडर 23 वाले टूर्नामेंट्स में उस चीज को इम्प्लीमेंट पहले करें और फिर उसके बाद देखें कि वो रणजी में हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. नाउ देयर आर टू एस्पेक्ट्स टू इट. वन इज ऑफ कोर्स आपका टॉस नहीं हो रहा एंड द विजिटिंग टीम गेट्स टू डिसाइड कि वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते. बट नाउ व्हेन इट कम्स टू रणजी, ऑब्वियसली आप अगर आप उसे इम्प्लीमेंट भी कर देते हो, व्हेन यू मूव टू इंडिया and let's say for example when you travel to an England when you travel to England or let's say Australia or South Africa or New Zealand, तब उस टाइम पे क्या होगा? England will not tell you कि नहीं यार हम टॉस नहीं करेंगे. Now you get to decide. See, at the end of the day a traveling side has to somewhere adapt to the conditions and आपको mentally strong होना पड़ेगा. ठीक है. और अंडर 23 में अगर आप ये चीज लेके आ रहे हो तो क्या आप मैसेज पहुंचा रहे हो टू दी अंडर 23 प्लेयर्स कि वंस यू मूव टू द रणजी साइड यू इवेंचुअली इवन एज अ ट्रैवलिंग साइड यू गेट टू अंडरस्टैंड कि हाँ चलो ठीक है दीज आर द कंडीशंस, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू एटसेट्रा एटसेट्रा एंड ऑल दैट. बट व्हेन यू मूव टू इंडिया एंड सीनियर पोजीशंस में जब आप जाओगे तो क्या ये आपको हेल्प करेगा? ये माइंडसेट क्या आपको हेल्प करेगा? नाउ अगेन इफ यू एक्चुअली सी इट फ्रॉम द टीम व्हिच इज होस्टिंग इट, ठीक है, उनका भी अपना एक अलग साइड हो सकता है. ठीक है, they might not probably be able to exploit the conditions as much as they probably want to. ठीक है, which is and it's absolutely fair कि मतलब आप एक होम एडवांटेज जो है खत्म कर देना चाहते हो. ठीक है, वो मैं समझ रहा हूँ. पर आपको चलो ठीक है, सीके नायडू में आपको ट्रैवलिंग एज अ ट्रैवलिंग साइड जो है आपको वो एक एडवांटेज मिल रहा है. बट डू यू थिंक दैट टॉस इज गोइंग टू बी द मेजर फैक्टर टू डिसाइड द रिजल्ट्स? आई थिंक ये एक बहुत बड़ा स्टेप है and it's okay to try it out in the CK Naidu Trophy क्योंकि see at the end of the day अगर आपने अंडर 23 करना है and if you are to pilot it out and then of course then see whether it's making sense or not. ठीक है, CK Naidu I think in that ways is the perfect tournament to do it. So we'll have to see, we'll have to see and wait for the results as to what is going to happen, what is not, and on the basis of that I think also BCCI will then later on try and see if whether it's feasible also to the Ranji Trophy एटसेट्रा. सो ये देखना पड़ेगा यार. ये दिस इज ऑब्वियसली मेरे हिसाब से तो मतलब ट्रैवलिंग साइट को आप उस माइंडसेट में डाल रहे हो, सो इट कैन बी अ लिटिल डेंजरस व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग फॉर इंडिया. जैसे अंकित, आई एग्री विद व्हाट कृष्णा सेड. उसने एक चीज सही बोली कि अगर आपको पता ही है या कि आप बैटिंग या बॉलिंग करने वाले हो, विजिटिंग टीम हो, तो पिच का जो फैक्टर है वो कंप्लीटली नलिफाई हो जाता है और आप उस कंडीशन में चैलेंजिंग नहीं खेल सकते. बट उसके बाद मैं ये भी सोच रहा था कि ऐसा वो क्यों करेंगे. ये बात तो शायद जब राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण डिसाइड कर रहे थे, उन्होंने भी सोचा होगा ना कि कोई प्लॉजिबल रीजन है कि यार ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं. यार इसमें फिर वो बात आ जाएगी एलिमेंट ऑफ लक का. बहुत सिंपल सा लॉजिक है, एलिमेंट ऑफ लक आ जाएगा इसमें. कि आप ठीक है यार, ऐसा तो है नहीं कि आप चल मैं एग्जांपल लेता हूँ. मैं मुंबई में खेलने जा रहा हूँ. मैं डीवाई पाटिल स्टेडियम में जा रहा हूँ एंड आई एम ट्रैवलिंग टू मुंबई फ्रॉम लाइक एनी अदर रीजन. आई नो द पिच, हाउ इज गोना बिहेव.
ये तो आपको पहले से पता रहेगा ना यार, आप उतना स्टडी तो करके जाओगे ही कि कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है। तो यार ठीक है, टॉस हो चाहे ना हो, वो एक सिमिलर सा चीज है। अगर वो टॉस जीतेगा, जो पिच जैसा बिहेव करती है वो सामने वाला वही चूज करेगा, नहीं मैं बैट करना चाहूंगा क्योंकि आई नो दैट कि 3 दिन के बाद ये पिच खराब हो जाएगी, ये हम्म, बॉलिंग के लिए अच्छी हो जाएगी। या फिर बैटिंग, और जैसे जैसे धूप निकलती जाएगी, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, जैसे जैसे धूप निकलती जाएगी ये पिच और अच्छा रिएक्ट करेगी। तो ठीक है यार, डिसीजन है, दे वांटेड टू ब्रिंग अ चेंज, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, नथिंग एल्स। मेरे मेरे को को ऐसा इतना लगता कुछ है कि मेजर नहीं लग रहा है, मेरे को इतना यार आप प्रिपेयर होके जाते हो मेंटली, आप कहीं भी खेलने जाओ आप प्रिपेयर होके जाते हो, आप पूरा स्टडी करते हो उस पिच के बारे में। मैच होने के पहले भी यार यू हैव, आपको अपॉर्चुनिटी रहती है, यू गो एंड डू द इंस्पेक्शन ऑफ द पिच। कई टाइम्स होता है कि पिच थोड़ा अलग बिहेव करती है, फिर वहां पे कि हैवी रोलर चला दिया है, फिर ग्रास है, फिर आप डिसाइड करते हो टॉस जीतने के बाद कि आप क्या लोगे। हम्म, मेरे को ऐसा लगता है कि जो बड़ी बड़ी टीम्स है ना, जैसे जिनके पास ग्राउंड्स है जहाँ पे मैक्सिमम मैचेस होते हैं या जिस रीजन में मैच होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने, मान लो तमिलनाडु में बहुत सारे मैचेस, चेपॉक में मैचेस आपने काफी लीग फेजेस के रखे हुए हैं, तो तमिलनाडु रियलाइजेस कि यार हमारे पास ना इस बार इतने ज्यादा स्पिन बॉलर्स नहीं है, क्योंकि हमारे जो मेन स्पिनर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आइदर ऑन नेशनल ड्यूटी प्लेइंग इंडिया है, वट एवर, वी हैव अ कोर ऑफ बैट्समैन। तो इस बार ना हम थोड़ा सा एक फ्लैट ट्रैक बनाते हैं। Now imagine if Karnataka is traveling to Tamil Nadu and they enter there and they see a flat track and they're like, अरे हम तो 4 फास्ट बॉलर लेके आए हैं, हमें लगा चेपॉक का पिच है, थोड़ा सा घूमेगा, जो हुआ नहीं, और हमारे पास 4 फास्ट बॉलर है, तो एक अनफेयर एडवांटेज होता हो जाता है फिर। देन यू आर टेक्निकली प्लेइंग ऑन अ फ्लैट डेक with Tamil Nadu having all the capacity of batsmen. I'm just giving examples. I'm not saying they're doing that. But if you go to Saurashtra, again, flat wickets. If you go to Wankhede, there is bounce in the wicket. So teams might alter their team combination. और जब आपकी विजिटिंग टीम आती है तो उनके पास फिर लगता है हमारे पास तो यही है अब, these are best 11. So I think that is where they would have realized over years that teams are sort of favoring the conditions too much in there. So it's going to be very interesting to see in the CK Naidu Trophy. Yeah, if that happens. Um, Second question, Krishna. रणजी ट्रॉफी 2 फेजेस में खेला जाएगा, पहले लीग, फिर सैयद मुश्ताक अली, फिर विजय हजारे, एंड देन अगेन नॉकआउट्स. One of the major reasons they are saying is because of weather. Is weather is a has played a big part in this, and second is player fatigue. What do you feel about playing it in 2 phases now? यार वेदर आई थिंक इतना बड़ा फैक्टर है नहीं ऑब्वियसली। ज्यादा बड़ा फैक्टर यही है कि वर्कलोड मैनेजमेंट आपका ज्यादा जरूरी है एंड टू गेट प्लेयर्स बैक इन शेप। एंड क्योंकि वेदर आपको देखो, यू आर इवेंचुअली एनीवे स्टार्टिंग आफ्टर द रेनी सीजन, राइट? सो इट्स नॉट लाइक कि पहले जो जो आपका ऑटम है उसमें ही शुरू होता है आपका डोमेस्टिक सीजन। एंड दिस एंटायर डिबेट ऑफ कि कब हमें शुरू करना चाहिए एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, इसकी वजह से डोमेस्टिक लीग्स जो आपकी आ रही हैं, ये जितनी भी ये फ्रेंचाइज लीग्स भी आ रही हैं, वो भी काफी सफर करती हैं। नो, आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। So these domestic leagues also have a very very small window, right after just right after the IPL। ठीक है, बीसीसीआई ने इनको बोला है कि आप राइट आफ्टर द आईपीएल, विच इज 15 days आफ्टर द आईपीएल, यू कैन ऑर्गेनाइज योर डोमेस्टिक टूर्नामेंट। ठीक है, जो भी आपका T20 लीग्स होते हैं। और बिफोर द लेट्स से द डोमेस्टिक सीजन स्टार्ट्स, आपको 5 दिन या 6 दिन के अंदर उससे पहले पहले आपको ये सारी लीग्स जो है खत्म करनी पड़ेगी। सो इफ योर डोमेस्टिक सीजन इज स्टार्टिंग विच इज फ्रॉम द 5th of September, ठीक है, आपके पास स्टेट वाइज बहुत कम टाइम है कि आप ये सारी लीग्स वगैरह भी आइडेंटिफाई कर पाओ। क्योंकि इवेंचुअली अगर आपका ये मन है कि यार मैं इतने सारे लीग से स्काउटिंग करूंगा और मैं क्या कहते हैं इतने सारे फ्रेंचाइज लीग्स भी बनाऊंगा, बिकॉज पैसा is also an important factor. So at the end of the day, you have a very small window, and for these leagues to operate, one of the biggest things is कि इनके पास it is during the rainy season that they usually organize their this thing. One of the biggest examples is प्रो बंगाल का जो फाइनल है, जो इस साल हुआ था, इट वाज द फर्स्ट सीजन। प्रो बंगाल का जो फाइनल है वो इनफैक्ट वॉश आउट हुआ था एंड द ट्रॉफी वाज शेयर्ड बिटवीन टू टीम्स। सो दैट इन इटसेल्फ जस्ट गोस टू शो कि मतलब इनके पास एक छोटा सा विंडो है। एंड देन लेटर ऑन व्हेन ऑफ कोर्स व्हेन यू मूव ऑन टू द डोमेस्टिक सीजन, अब डोमेस्टिक सीजन और इसके लिए भी मतलब एक काफी तगड़ी डिबेट चल रही है इन द सेंस कि मतलब हाउ मेनी प्लेयर्स should actually go out and play county, should be able to etc and all that. We'll come to that later. But I think uh, again this is again going to be a hit and try method by BCCI
जहां पे वो ये कह रहे हैं कि नहीं यार, हम पहले 5 लीग के मैचेस रणजी के जो है पहले फेज में खिलाएंगे, फिर उसके बाद आपका व्हाइट बॉल टूर्नामेंट होंगे, फिर उसके बाद हम जो है आखिरी के 2 लीग के मैचेस जो है आपके वो कराएंगे, और उसके बाद नॉकआउट्स कराएंगे। सो बाय द टाइम इट रीचेस नॉकआउट्स, ठीक है, यू आर एनीवे लेफ्ट विद ओनली 4 टीम्स, ठीक है। उससे पहले आपने एनीवे मेजर पार्ट जो है डोमेस्टिक सीजन का वो खिला दिया, ठीक है। आफ्टर दैट इट्स ओनली 2 गेम्स। सो I don't know how it is panning out when it comes to playing it in 2 seasons. इधर आपका जो पूरा एंटायर लीग स्टेज था जो 7 मैच का था, आपने कुछ गेम्स को कुछ टीम्स को जो है 3 मैचेस खिलाने चाहिए थे, और कुछ टीम्स को जो है 4 मैचेस खिला लेने चाहिए थे एटलीस्ट, एंड उसको इक्वली डिवाइड करना चाहिए था। और फिर उसके बाद मे बी आप नॉकआउट्स को और थोड़ा सा और लेटर ऑन आप क्या कहते हैं वो कर सकते थे, बीच में आपका एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट आप सैयद मुश्ताक अली डाल सकते थे बिफोर द नॉकआउट। आई थिंक दैट इज द वे दैट यू कुड हैव प्रॉब्ली प्लान्ड, अगर आपको ये 2 फेजेस में कराना ही था। बट आई थिंक द मेजर रीजन इज नॉट जस्ट रेन्स और द वेदर, बट आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ वर्कलोड मैनेजमेंट। एंड आई थिंक वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, ये सारे के सारे उस कमिटी में थे जिसमें ये सारे डिसीजंस लिए जाने थे। सो अगेन उन्होंने कुछ सोच के ही लिया होगा कि मतलब इस फेज में इतने गेम्स खिलाने, इस फेज में इतने गेम्स खिलाने। बट दिस इज माय ओपिनियन कि आपको इस तरीके से प्लान आउट करना चाहिए। अंकित, मेरा इसमें एक सवाल है। एक आप वर्कलोड मैनेजमेंट की बात करते हो कि हम 2 फेजेस में करते हैं। इनफैक्ट 2 फेजेस इज नॉट because of workload management technically, but they're going to have more rest days, and that is why the Ranji Trophy might get a little longer, and then sort of that is why into 2 phases. But my question is कि आपकी टीम नॉकआउट में पहुंच गई, ठीक है, आपका एस फास्ट बॉलर ने आप विकेट्स लिए और आप नॉकआउट में पहुंच गए। अब वही एस फास्ट बॉलर सैयद मुश्ताक अली खेलता है, विजय हजारे खेलता है, एंड लेट्स से ही पिक्स अप एन इंजरी, एंड देन यू एंटर द नॉकआउट्स। देन एज अ टीम यू आर लाइक, अगर इफ उस टाइम पे नॉर्मल होता तो आज हम शायद हमारे एक एडवांटेज में रहते, एंड सडनली बिकॉज देयर आर सो मेनी सीजंस कमिंग अप, आई हैव माय स्टार प्लेयर गॉन। डू यू? इंजरी इज वेरी सब्जेक्टिव धोनिल। आप अब ये भी तो देखना है यार, आपको 7वें गेम में तो हो सकती है, आपको 6ठे गेम में भी हो सकती है इंजरी लीग्स के। सो अगर आप पूरा I'm saying because you are playing so much cricket, your chances, you're prone to injury more probably. सो बीच में नहीं, ऑफ कोर्स यू आर प्रोन टू मोर इंजरी, बट अगर आप बीच में व्हाइट बॉल क्रिकेट खिलाते हो, सो आफ्टर द फर्स्ट फेज इट्स द T20 व्हिच इज सैयद मुश्ताक अली, फिर उसके बाद आप विजय हजारे पे जाओ। सो आपको आपकी बॉडी को आफ्टर दोस 5 गेम्स प्रॉब्ली वो थोड़ा सा रेस्ट मिल जा रहा है, बिकॉज अगेन यू आर प्लेइंग ओनली T20s, ठीक है। आप पूरा दिन क्या कहते हैं वेस्टेड नहीं हो, यू आर नॉट प्लेइंग 6.5 आवर्स और 7 आवर्स ऑफ क्रिकेट, जो कि कड़ी धूप में आप वैसा नहीं खेल रहे, ठीक है। सो समवेयर डाउन द लाइन यू ऑल्सो हैव अ लिटिल बिट ऑफ रेस्ट टू योर बॉडी कि हाँ चलो ठीक है, अब हम T20s खेल रहे हैं फॉर अ बॉलर where he was probably bowling 20 overs a day, or maybe let's say 14 or 15 overs a day. He's now bowling only 4 overs a day. I understand that those 4 overs can actually be also a huge toll on your body, because again coming in from a T20 it requires a lot more efforts, etc., and all of that. But again comparatively but आपका toll उतना नहीं होता because you're only bowling 4 overs. So injury again is going to be very very subjective, क्योंकि अगर आप चलो ठीक है मान लो कि एक साथ आप खिलाते भी हो, कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो नॉकआउट से पहले इंजर हो जाते हैं, उसके बाद नॉकआउट में आपके पास एक टीम वैसी नहीं होती। सो सिर्फ आप इंजरी को सोच के मुझे नहीं लगता कि आगे आप ऐसे बढ़ सकते हो। बट हाँ, माय स्टैंड अगेन रिमेन्स द सेम, वेयर आप समवेयर डाउन द लाइन यू प्रॉब्ली कुड हैव थॉट कि नहीं यार, मैं 3 से 4 गेम्स के बीच में सारी टीम्स को खिलाऊंगा और फिर उसके बाद सेकंड फेज कराऊंगा, क्योंकि नॉकआउट में आपके पास सिर्फ 4 टीम रह जाएगी। तो अंकित शार्दुल ठाकुर ने कहा था फाइनल में रणजी ट्रॉफी के जब जीतने के बाद, उसने कहा कि यार थोड़ा सा आप देख लो वर्कलोड मैनेजमेंट, क्योंकि रिकवरी बहुत नहीं हो पाती हमसे, लाइक बहुत बैक टू बैक मैचेस लगते हैं, प्लस ट्रैवलिंग डेज होते हैं। व्हाट डू यू थिंक दैट दिस लीग फेज ऑफ 2 पार्ट्स विल एक्चुअली हेल्प recover from injuries or have better recovery time? Yeah, coming to the first Shardul Thakur, concern, because he was the integral part of Mumbai's won. जो मुंबई ने जीता था रणजी ट्रॉफी, शार्दुल ठाकुर, yes, he has given all contribution. इसके बाद फिर वो बोलते हैं कि यार भाई मैं 10 कंसेक्यूटिव मैच खेला रणजी का, सो देयर इज, इसके बाद फिर मेरे को इंडिया भी खेलना है। कोई अगर इसी बीच में आपका टेस्ट मैच आ गया, तो इसी बीच में आपका टेस्ट मैच शेड्यूल हो गया, आपको तो रेस्ट टाइम मिलेगा ही नहीं।
That's the reason they came up with an idea to do in a 2 phases. And coming to the weather disruption, बहुत सारे मैचेस नॉर्थ साइड में होते हैं जहां पे फॉग मेजर इशू है. बारिश वारिश तो ठीक है आप समझते हो, बट व्हेन इट कम्स टू द फॉग, और वो ठंडी के टाइम पे शाम जल्दी हो जाती है और फिर सुबह आपको उतना टाइम पीरियड मिलता नहीं है, कि 11 बजे आसमान खुल रहा है, फिर धूप निकल रही है, उससे पहले बॉल ही नहीं दिखेगी आपको. तो इसलिए ये इन्होंने 2 फेज में करने की सोचा है. ये इनका दो मेजर रीजन है. अगर शार्दुल ठाकुर और मोहित अवस्थी ने ये कंसर्न, मोहित अवस्थी जो विदर्भा से खेलते हैं, जब उनकी टीम को सख्त जरूरत थी, ही वॉज इंजर्ड. करेक्ट. तो फिर वही है कि अगर जब ये लोगों ने क्वेश्चन किया, देन दे केम कि भाई हमको ये प्लेयर सही बोल रहे हैं, हमको थोड़ा गैप देना चाहिए. ये रणजी के मैचेस में, बाकी जितने भी मैचेस हो रहे हैं, इसमें थोड़ा गैप देना चाहिए. तो यही एक रीजन, नथिंग मोर मच. और इससे फिर आपको पता है एक रेस्ट टाइम मिलता है. अगर इसी बीच में आपने अच्छा परफॉर्म किया है और आपको अगर इंडिया के लिए जरूरत पड़ गई तो आप जा सकते हो. करेक्ट. Probably this will be the win. इंडिया से याद है और रणजी ट्रॉफी से याद आया, बॉम्बे मुंबई is a Ranji Trophy team that has dominated throughout all these years and has probably won the highest amount of championships. There is another team which is Karnataka, which has produced some of the finest international and domestic cricketers over the years. Ankit, do you think Karnataka is going to be a force to reckon with इस Ranji Trophy में? Yeah, absolutely. Because see, अगर मुंबई अगर 42 times जीता है रणजी ट्रॉफी, so the Karnataka comes on a second, which they have won 8 times and they have been 6 or 7 to 8 times in a final also. ठीक है. अगर प्लेयर्स की हम बात करें, और there are players, the classic batsmen like Gundappa Vishwanath, Rahul Dravid, and when it comes to the bowler, Erapalli Prasanna was there. जो पहले लेग स्पिनर बॉलिंग को वो जो एरा में लेके आए थे 70s में. देन देयर वाज अ रॉजर बिन्नी, सैयद किरमानी, विकेट कीपर. यार कर्नाटका ने बहुत अच्छे अच्छे बॉलर भी प्रोड्यूस किए. वेंकटेश प्रसाद, जवागल श्रीनाथ, इसके बाद फिर सुनील जोशी वाज अनदर इफेक्टिव स्लो आर्म बॉलर. तो वेटेज देखा जाए ना तो कर्नाटका और मुंबई का हमेशा हाई रहा है. यही लोग आधी जो इंडिया की साइड बनती थी ना, यही सारे प्लेयर्स थे. और क्यों ना हो, मेरा रीजन है ये क्यों ना हो, when your star players coming from these regions, they definitely will take a place. जो लोग बोलते हैं ना मुंबई लॉबी, कर्नाटका लॉबी. So this is the reason. Go and check the back, what they have done for their states. 42 times, 8 times. After that Delhi comes 7 times. After that Baroda comes 4 times. Holkar 4 times. Saurashtra 2 times. Vidarbha 2 times. Bengal 2 times. So player, definitely the star player will be from these 2 states. और यार देख, अगर अब हम रणजी की बात कर रहे हैं ना, सो ये स्टार्ट हुआ था 1934 में. 1934 में एएस डिमेलो जो बीसीसीआई के फाउंडर भी थे, उन्होंने ये आइडिया दिया था. शिमला में इसकी मीटिंग होती है, उसका नाम रखा जाता है द क्रिकेट चैंपियनशिप ऑफ इंडिया. द फर्स्ट मैच विच प्लेड बिटवीन द रणजी, इट वाज अ मद्रास वर्सेस मैसूर in 1934 4th November in Chowpak Stadium, जिसमें मद्रास जीत जाता है इनिंग से. रन्स भी ज्यादा नहीं बनते हैं यार, 48 एक इनिंग में बनता है, 58 एक इनिंग में बनता है ऐसे. तो सो दिस वाज द फाउंडेशन व्हिच वाज लेड बाय बीसीसीआई फॉर अ रणजी ट्रॉफी. सो ये एक स्टोरी है यार बहुत सारे. यार कर्नाटका का अगर हम फिर अभी न्यू एरा में बात करें, मनीष पांडे हैं, केएल राहुल है, मयंक अग्रवाल है, देवदत्त पाडिक्कल है, जो अभी करंट. मयंक अग्रवाल इज नाउ कैप्टन, देवदत्त पाडिक्कल इज इन द टीम. तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं यार. दैट्स रीजन दे आर इन दी. ठीक है, अभी और सारे स्टेट से आ रहे हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रहे हैं, उनको लिया जा रहा है. बट दीज 2 स्टेट्स हैज बीन नोन फॉर द बेस्ट प्रोड्यूसर फॉर द either it's a red ball or either it's a white ball cricket. तो क्यों नहीं आया सब? कप आया ना अभी, और कितना कप चाहिए तेरे को भाई? Okay, so that was Karnataka. अब मेरे लिए एक can I add something to that? I think जो आप कर्नाटका की बात कर रहे थे एंड क्यों ना आए, बट मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि क्रिकेट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, ठीक है, हैज बीन इन अर्बन स्पोर्ट इन इंडिया. चाहे बहुत लोग बोल दे कि नहीं जी आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, ये कैसे हो सकता है. I actually a middle class lot of statistics to show that, ठीक है.
ये रूरल इंडिया में ना इतना खेला ही नहीं जाता अनफॉर्चुनेटली। हमारे पास हम कहते रहते हैं कि मतलब वो जस्टिन लैंगर कहता रहता है कि ये नहीं यार हमारे पास 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है ये वो, सो वी डोंट माइंड लूजिंग टू अ थर्ड ग्रेड इंडियन साइड ये वो वगैरह। प्लीज, नॉट एवरीवन इन इंडिया एक्चुअली प्लेज क्रिकेट एंड इट्स अ फैक्ट। ठीक है, इट्स अ ह्यूज फैक्ट एंड इनफैक्ट क्रिकेट हमारे लिए ही नहीं बल्कि बहुत सारे कंट्रीज में भी ये क्या कहते हैं अर्बन पॉपुलेशन में ही होता है। इनफैक्ट अगर आप देखो इंडिया में सिर्फ 35% एंड श्रीलंका जैसी क्या कहते हैं ये देश में ऑलमोस्ट अराउंड 19%। ठीक है, ये जो पॉपुलेशन है वो खेलती है क्रिकेट और ये सारी की सारी अर्बन पॉपुलेशन में है। एंड अगर आप देखो बहुत टाइम बाद जैसे हमारा जो अर्बनाइजेशन हुआ था, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं यार 1983 में का वर्ल्ड कप हम लोग देख ही नहीं पाते थे क्योंकि हमारे पास घर में टीवी नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। लोगों के पास वो पहुंचा कब? इट वॉज ओनली आफ्टर द 1983 वर्ल्ड कप। इनफैक्ट इन द 1990s जब धीरे धीरे जो है अर्बनाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ और फिर उसके बाद धीरे धीरे घरों में टीवी जाने लगा, दूरदर्शन जाने लगा। जब दूरदर्शन, एक टाइम था ऐसा कि भाई बीसीसीआई एक्चुअली पे करता था दूरदर्शन को, पता है? जब जगमोहन डालमिया आया, हाँ। फिर उसके बाद 1993 में जगमोहन दालमिया ने बोला कि भाई अब हम पे नहीं करेंगे, कमर्शलाइजेशन। देना पड़ेगा। they fought for about 2 years for this and then Supreme Court gave a ruling कि नहीं भाई 1995 में कि आप ये बीसीसीआई किसी को भी भेज सकता है, कोई चक्कर नहीं है, it can be a private this thing because they own the rights for cricket। और धीरे धीरे फिर उसके बाद ये फैलने लगा। now with the invention of let's say the IPL and a lot of all these T20 leagues, अब आपको जो है धीरे धीरे कहीं सारे मतलब you get to see let's say of course Dhoni happened before the IPL but I'm just saying that Dhoni happened to be one of those guys जिसने मतलब इस चीज को पूरा वो किया कि नहीं रांची से भी क्रिकेटर्स आ रहे, झारखंड से भी क्रिकेटर्स आ रहे हैं। आज आपको लगता है कि नहीं यार व्हेन यू सी एन अभिषेक पोरेल, व्हेन यू सी एन ईशान किशन की नहीं भाई वहां से धोनी है, ये है वो है, इट इज स्टिल कंसिडर्ड दैट क्योंकि आपके फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एंड इनफैक्ट टिल डेट ऑल्सो क्रिकेट इज एन अर्बन स्पोर्ट। आप देख लो Yeah. मुंबई के कितने लोग खेल रहे हैं। अभी आप देख लो कि मतलब क्या कहते हैं एक टाइम पे था 5 लोग खेलते थे कर्नाटका से, 5 लोग। देर वॉज द्राविड, देर वॉज अनिल कुंबले, देर वॉज वेंकटेश प्रसाद, 2 और 3 जवाहर श्रीनाथ, जवाहर श्रीनाथ। 5 लोग खेलते थे भाई इंडियन टीम में कर्नाटका से, मजाक नहीं है यार। सो एंड ऑल ऑफ देम वर इनफैक्ट सो आप ये जो कह रहे हो कि क्या कहते हैं क्यों ना जीते, वो इसलिए नहीं जीत रही है। नाउ धीरे धीरे आप नाउ यू सी अ विदर्भा कमिंग इन, नाउ यू सी अ मध्य प्रदेश आल्सो कमिंग इन विद प्रॉपर कोचिंग एटसेट्रा। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टैलेंट, इट्स बिकॉज दिस स्पोर्ट हैजंट रीच्ड देयर But अनफॉर्चुनेटली। you have to understand that it's an expensive sport, right? Cricket needs a cricket ground. And I'm saying professionally. You need a cricket ground. आपको स्पाइक्स चाहिए, आपको वो क्रिकेट इक्विपमेंट, वो पैड वैड खरीदना, बैट खरीदना महंगा अब भी है और तब भी था। And it was Yeah. always an elite sport. It was a middle class sport. I'm not saying middle class in terms of what we say, arey, wo. Middle class at that point in time was also at a good level. So it's like golf, right? Golf needs huge spaces to play. Yeah. So, Golf needs I mean, huge spaces to play, but it also जो तू कह रहा है भाई, obviously you require a pitch, you require the ground, you and proper ground चाहिए। Football for the longest time and why it is sort of played throughout the world is because all you need is a ball। Yeah. और आपको और कुछ चाहिए मतलब ऑब्वियसली अब स्टार्ट वगैरह आ गए हैं और कई सारी मतलब टेक्निकलिटीज और भी सारी चीजें बढ़ गई हैं। पर ऐसा नहीं है कि मतलब यार कि आपको किट चाहिए, प्रॉपर गियर चाहिए। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एंड वी शेयर दिस आल्सो इन द अर्लियर पॉडकास्ट, पापुआ न्यू गिनी, ठीक है, देयर टीम यूज्ड टू शेयर द किट्स। उनके पास 5 किट थे टोटल और उनकी पूरी टीम जो है किट्स शेयर करती थी। सो ऑफ कोर्स इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड जब ये स्पोर्ट भी इन्वेंट हुआ था, इट वाज इन्वेंटेड फॉर द एलीट। द रीजन व्हाई पीपल केम the other sects of society came in was कि उनके पास bowlers नहीं थे because the elites only could bat and they couldn't bowl। That was the only reason। और उसकी इसीलिए हमारे पास वो players versus क्या कहते हैं ये लीजर और जेंटलमैन वाली क्या कहते हैं लीग्स खेली जाती थी when England actually invented the sport। क्योंकि जो लेबर क्लास लोग था, सॉरी टू से दैट, बट उस टाइम का जो मतलब द लेबर क्लास लोग, इट वाज टर्म्ड एज दैट थिंग, ठीक है, वो लोग आके बॉलिंग कराते थे। और वहां से शुरू हुआ कि नहीं भाई लेबर, फिर उसके बाद उस क्लास ने बोला कि नहीं भाई अब हम बैटिंग भी करेंगे और हम हराएंगे। और एक्चुअली उन लोगों ने हरा के दिखाया बिकॉज दे वर फिजिकली मोर एंड्योरिंग, उनका मसल क्या कहते हैं एंड्योरेंस ज्यादा था। Yeah. सो but जिसके अनफॉर्चुनेटली वो ज्यादा क्रिकेट खेल सकता है। पता है मेरे को सबसे आयरॉनिक बात क्या लगती है रणजी ट्रॉफी के बारे में? सबसे आयरॉनिक बात रणजी ट्रॉफी के बारे में ये है कि द प्लेयर आफ्टर whom
you've named the Ranji Trophy, actually hasn't played first class in India. In Yeah. fact, he was also criticized that when he got a chance, and even Tulip Singh ji, when he got a chance to play in India, they refused. And sometimes a lot of people also say that he had the opportunity to grow first class in India. He denied that and rather sort of played English county and in the England cricket team. But the entire Ranji Trophy is named after him. So that's, but he invented the leg glance. And और एक चीज बताता हूँ, चल ठीक है. You guys talk about success stories of Ranji Trophy right now. Vidarbha आता है, मध्य प्रदेश आता है, and money investment is something that you talked about, which I disagree a little bit and tell you why. Okay. Niranjan Shah was once the secretary of the BCCI and has always been the president for Saurashtra Cricket Association. Right now, of course, it's Jaidev Shah, who's his son. 1999 से ना सौराष्ट्र एक बहुत ही कमजोर रणजी ट्रॉफी टीम, ठीक है. Debu Mitra was the coach that Niranjan Shah was scouting for. Debu Mitra is the same coach who had Saurav Ganguly when he was the coach of the Bengal team and sort of, got Saurav Ganguly going. And 1999 से वो परसुएट कर रहा था कि कैन यू प्लीज कम टू सौराष्ट्र. देबू मित्रा से क्या मैं क्या करूंगा सौराष्ट्र आगे, क्या है आपके पास? बोलता आप एक बार आके तो देखो तो सही. सो ही कमिटेड टू द जॉब. व्हेन ही केम टू सौराष्ट्र ही वाज शॉक्ड टू सी. ही सेड आपकी रणजी ट्रॉफी टीम पूरे साल में 4 मैच खेलती है, बस ये आपका स्ट्रक्चर है रणजी ट्रॉफी का. And then he actually created a domestic structure where every district से टीम्स बनती है at different age group levels, वो 3 दिन खेलती है. फिर उसने एक ओपन टूर्नामेंट रखा 50 ओवर का विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स कि भाई आप इतना खेलो. तो ही गिव देम मैच प्रैक्टिस, ठीक है. फिर जो मैटिंग विकेट में खेलते थे ना, उसने बोला सर आप मैटिंग विकेट पे खिलाओगे ना तो ये टर्फ पे कभी खेल नहीं पाएंगे. सो ही गॉट दोस टर्फ विकेट्स इनटू फैसिलिटीज, ठीक है. एंड फाइनली वो लोग, सौराष्ट्र यूज्ड टू बी अ प्लेट डिवीजन टीम. तो प्लेट डिवीजन में क्या होता है, आपको प्लेट जीतना पड़ता है, फिर आप एलीट में जाते हो. तो 2005-6 में वो फाइनली प्लेट डिवीजन जीते, फिर वो एलीट में आए, ठीक है. सो एंड देन आफ्टर ऑफ कोर्स सर्विंग सौराष्ट्र क्रिकेट फॉर सो मेनी इयर्स, एंड एट दैट पॉइंट टाइम आल्सो ही सेड दैट कि अपना प्लेयर्स को रिप्रिमांड नहीं कर सकते फील्ड के ऊपर, आपको उनको अपनी स्पेस देनी पड़ेगी. एंड ही सेड दैट इफ यू लेट द कैप्टन एंड द प्लेयर्स डू दैट जॉब, as a coach, if you just shut up and look at it, that's more than enough. And then came the emergence of Sitanshu Kotak. Sitanshu Kotak produced green wickets for practice. बोला कि यार आप जब बॉम्बे दिल्ली खेलने जाते हो ना, ग्रीन विकेट पे हमारे प्लेयर्स सर्वाइव नहीं कर पाते, तो बॉलर्स को ग्रीन विकेट पे बैटिंग और बॉलिंग कराया. उसने बोला कि अगर आप बॉलर हो तो आपको बैट्समैन बन के भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, बिकॉज दैट इज व्हाट चैंपियंस टीम डू, ठीक है. एक टाइम पर सौराष्ट्र का हार्डली कोई प्लेयर इंडिया के लिए खेलता था. नाउ वी हैव जयदेव उनाडकट, चेतेश्वर पुजारा, रविंद्र जडेजा. वी हैव 2 players like Prerak Makar and Harvik Desai who represent India under 19 and also play the IPL. Then you have someone like Sheldon Jackson, who played for KKR, and Samath Vyas, who was also selected for SRH. तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पैसे दे दोगे तो आप जीत जाओगे, ठीक है. You have to really invest in the domestic structure, follow it rigorously, make plausible changes, make practical changes which are adaptable. फिर जाके आप एक रणजी ट्रॉफी टाइटल जीत सकते हो. सौराष्ट्र कम से कम 3 बार फाइनल में पहुंचा है पर जीत नहीं पाए. वो फाइनली 2019-20 में जीता और इस बार 23-24 में जीता. एंड दे हैव दिस वंडरफुल प्रैक्टिस. ओके, लेट्स से द चिप्स आर लेट डाउन, यू आर नॉट गेटिंग अ विकेट, तो एक बंदा ना रैंडमली पूरी टीम से एक बार ताली मारेगा, फिर कोई और बंदा 2 बार मारेगा, फिर तीसरा बंदा 3 बार मारेगा, एंड एट वन पॉइंट इन टाइम द एंटायर टीम इज क्लैपिंग in the middle of a match, and that inspires the fast bowlers. And if you see Jaidev Unadkat operate, he operates with a lot of passion. Like I have sometimes seen him play with so much passion that it reminds me that why isn't this boy a part of the Indian cricket team? But you should see their matches. They clap once, then everyone starts clapping. It intimidates the opposition. And a lot of weak teams would say, चलो हम बुरी तरह नहीं हारते हैं बड़ी टीम के सामने, या फिर हम ड्रॉ के लिए खेलते हैं. Now teams are actually capable of beating Bombay or Tamil Nadu or Karnataka. So it's not just about investing money and having proper facilities. It's also about how the hunger to win and what would you do about it. But it's a long topic. There are a lot of success stories apart from Saurashtra. A lot of teams. Madhya Pradesh was one. Coming to that, I have an additional question for all of you, and it could be a short answer. Ankit, I'll start with you. इतनी सारी रणजी ट्रॉफी टीम्स हैं हमारे पास, ठीक है, वेरी गुड. 38. हाँ, 38 टीम्स. Would you like to add a, let's say, an MCC
team coming in, or a West Indies A team, or a Sri Lanka A team to come and participate in Ranji Trophy? Or in fact, teams like Zimbabwe, Ireland, etc. can also come in. I mean, it should be the same like I feel, that's my opinion. The players can come and they can join the team rather than they are coming with their own team. There's no space. There's no vacuum left. अभी हम बात कर रहे हैं 2 फेज में हम क्रिकेट कराएंगे, फिर कहाँ और जगह बनेगी? पूरा कैलेंडर ईयर ही ब्लॉक हो जाएगा. Yes, player can chip in probably in a white ball to start with, in a white ball format. जो हम अपना सीके नायडू ट्रॉफी कराते हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कराते हैं, उसमें आके दे कैन स्टार्ट और एक्सपोजर मिल जाएगा उनको भी, हमारे प्लेयर्स को भी एक्सपोजर मिलेगा. जो स्टेट लेवल पे खेलते हैं, हु डिड नॉट एबल टू मेक इन दी आईपीएल या फिर इंडिया टीम में नहीं हो पाता है, तो उनके लिए अच्छा एक्सपोजर रहेगा. यस, प्लेयर नॉट द टीम. यार आई थिंक रणजी में तो नहीं, बट आई थिंक हमारे पास ऑलरेडी वो चीज है कि हम लोग इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी, इनके सारे टोज एनीवे कराते हैं. एंड इट्स नॉट जस्ट दैट, बट मेरे को ये एक सिनेरियो याद आ रहा है. सो MS के प्रसाद ने ना आइडेंटिफाई किया था एक टैलेंट एट द एज ऑफ 12. ये था शेख रशीद, एंड ही वाज सेंट फॉर अ ट्रेनिंग एंड एक्सपोजर कैंप इन द UK फॉर अबाउट 2 months. सो ही स्टार्टेड प्लेइंग गली क्रिकेट, ठीक है, दिलसुख नगर में एट द एज ऑफ 8. और उसके बाद वहां पे स्पोर्टिव क्रिकेट क्लब के लिए खेला था इन दी हैदराबाद क्रिकेट एकेडमी लीग. So his family then moved to Gantor. He became very serious about cricket. There were financial problems, but the family overcame it. And then he got inspired by one of the knocks that was played by Sachin Tendulkar in Hyderabad against Australia. And then एक inter-district tournament में उस बंदे ने 100 मारा, and then he realized that he could actually make it big. He was the vice captain of the under 19 T20 2022 World Cup. और वहां पे he got tested positive for COVID. उस टाइम VVS लक्ष्मण ने काफी सपोर्ट किया. उसने कहा कि भाई तू शैडो बैटिंग कर, होटल में विजुलाइज कर उन बॉलर्स को जिनको तू फेस करने वाला है. ऋषिकेश कनितकर, ही टुक अ लॉट ऑफ टाइम विद हिम, एंड देन उसने कहा कि यार तुम क्रीज पे ज्यादा टाइम स्पेंड करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सेमीफाइनल्स में ही स्कोर्ड 94, ठीक है, एंड द टीम वन ऑफ कोर्स. एंड उसने कहा कि यार मैं मेंटल प्रिपरेशन ज्यादा करता हूँ दैन टेक्निक. सो उसके बाद क्या हुआ कि उसको CSK में ले लिया गया. नाउ बिकॉज ऑफ दिस एंटायर मेंटल प्रिपरेशन थिंग एंड नॉट ऑन द टेक्निक, he was not used to the 4-day format. So जब उसका February 2022 में रणजी में डेब्यू हुआ था, तो मतलब it didn't really look good. तो CSK कैंप में गया, उसने धोनी से बात करी. धोनी ने कहा कि भाई तू पहले अपना गेम समझ, और हर फॉर्मेट के लिए ना तू सिमिलरली प्रिपेयर नहीं कर सकता. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपना गेम समझ के उसके अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करो. और फिर उसके बाद रणजी में ही स्टार्टेड प्लेइंग शॉट्स ऑन द ग्राउंड, और बहुत कम उसने क्या कहते हैं हवा में मारी. हनुमा विहारी एंड KS भरत उसको बहुत सपोर्ट करते हैं. दिस टाइम इन द आंध्रा लीग, ठीक है, he is the 3rd highest run getter with 297 runs in 6 matches with a strike rate of 140. So so उसने 12 साल की उम्र में ऑलरेडी वो जाके वहां पे खेल चुका है, ठीक है. क्रिकेट एक एक्सपोजर मिल चुका है उसका. हम लोग एनीवे जाते हैं काउंटी क्रिकेट खेल, ठीक है, बहुत सारी जगह. नाउ देयर आर रीजंस व्हाई वी ओनली प्ले काउंटी क्रिकेट एंड वी डोंट प्ले T20 लीग्स आल्सो, ठीक है, बाहर जाके. एंड प्लस द अदर थिंग इज कि हम अंदर भी बहुत ज्यादा, जैसे इसने कहा कि भाई वैक्यूम नहीं, मतलब वैक्यूम बहुत मतलब है ही नहीं, मतलब आप कहाँ खिलाओगे हम लोगों को, क्योंकि हमारे पास ऐसे इतनी टाइम टीम. द एंटायर प्रॉब्लम इज द क्रिकेटिंग कैलेंडर, ठीक है. राहुल द्रविड़ ने ना एक चीज बहुत अच्छी बोली थी, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, ठीक है, कि हम क्यों नहीं भेजते लोगों को, और क्या कहते लोगों को क्यों नहीं बुलाते. सबसे पहले बात ना हमें अपना देखना पड़ेगा कि हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर क्या अलाउ करता है, ठीक है. इसमें एक बहुत बड़ा चीज ये भी है कि अगर हम बाहर भेज देंगे लोगों, ठीक है, तो हमारा जो टेस्ट फॉर्मेट है, टेस्ट की जो कहते हैं जो डोमेस्टिक जो स्ट्रेंथ है वो खत्म हो जाएगी. क्योंकि अगर हर बंदा बाहर जाके लीग्स ही खेलता रहेगा पैसे के लिए, तो हमारे लिए वो चीज खत्म हो जाएगी. इसलिए व्हेन सौरव गांगुली केम इन, ही स्टार्टेड गिविंग सेंटर कॉन्ट्रैक्ट्स कि नहीं यार तुम रणजी खेल रहे हो, कोई बात नहीं, तुम 2.5 लाख रुपए बनो, कोई चक्कर नहीं है, तुम बनाओ कम से कम. और इसीलिए ये बेंच स्ट्रेंथ जो है धीरे 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 इवॉल्व हो रही है. नाउ पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग क्रिकेट एज अ करियर, ठीक है. अगेन आई and this all comes and boils down to money, ठीक है. and of course we might agree to disagree and all of that, ठीक है. तूने कहा कि नहीं, you don't completely agree with that, but imagine what the plight of India was earlier and what it is today, ठीक है. Why there are so many talents that are coming in, even if you're not playing the IPL, there are people who are financially stable today, is also because of the central contracts. It's because people now are taking cricket
very very seriously. They are taking cricket as a career. ठीक है, so everything again boils down to money. So it is very important. हमने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बात करी, ठीक है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इंडिया में इतना सॉलिड इसीलिए है क्योंकि लोगों को पता है कि हाँ चलो ठीक है यार, आई आई कैन गो आउट एंड प्ले फ्रीली, क्योंकि एटलीस्ट मुझे ये मालूम है कि मेरे 2 लाख रुपए आ रहे हैं, वो रणजी मैच के मेरे 2 लाख रुपए आ रहे हैं, कोई चक्कर नहीं उस चीज का, ठीक है. नाउ व्हेन इट कम्स टू गेटिंग अदर्स, आई थिंक नेपाल और ये जितने भी एसोसिएट नेशंस हैं इनको धीरे धीरे खिलाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है. आई डोंट नो एट व्हाट लेवल, बट दिस इज समथिंग दैट इज ऑलरेडी बीइंग प्लान्ड बाय बीसीसीआई. प्लान्ड, बट हैविंग सेड दैट, ठीक है, अगर हम दूसरी टीम्स को हमने ऑलरेडी बोल दिया है कि नहीं यार ये लोग आईपीएल आके खेल के हमें वर्ल्ड कप हरा जाते हैं, दिस एंड दैट इज ऑफ कोर्स दैट इज जस्ट अ वन ऑफ, ठीक है, वो हो गया. अदरवाइज इंडिया को इंडिया में हराना, वेदर इट्स व्हाइट बॉल, वेदर इट्स क्या कहते हैं रेड बॉल, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. एंड सो इज द केस फॉर ऑल द अदर टीम्स आल्सो. इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया टिल डेट, आप जितना भी खेल तो. और ये चीज जो होती है, जो T20 का जो बाहर का उधर का लीग्स का स्ट्रक्चर है, लोगों ने कहा कि नहीं यार हम एक्सक्लूसिविटी लूज आउट कर जाएंगे व्हेन इट कम्स टू आईपीएल, इसलिए हम इंडियन प्लेयर्स को नहीं खिलाए जाएंगे, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स खुद में अपने एक ब्रांड है, वो स्पॉन्सर्स को पुल आउट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे. तो बाहर वालों को आप बुला सकते हो, खिला सकते हो, पर आपके पास क्रिकेटिंग कैलेंडर जो है ना आपका, वो ऑलरेडी इतना ज्यादा क्लटर हो चुका है कि इन लीग्स के बारे में आप नहीं सोच सकते, आप उनके बारे में कैसे सोच सकते हो. जो लीग्स हैं आप उसके बारे में नहीं सोच सकते, आप उनके बारे में कैसे सोच सकते हो. एंड बीसीसीआई, इट इज एंड लॉट ऑफ पीपल से कि नहीं यार उनका जो है बहुत ही सेंट्रीफ्यूगल अप्रोच है, एक बहुत ही क्या कहते हैं नैरोड अप्रोच है, वो अपनी क्रिकेट देखते हैं, वो दुनिया भर की क्रिकेट नहीं देख पा रहे हैं. भाई जब अपने अपने घर में लाइट नहीं रहेगी तो आप दूसरे घर में कैसे बल्ब जलाओगे? इट इज एज सिंपल एज दैट. एंड वी हैव सपोर्टेड अफगानिस्तान, वी आर गोइंग टू नाउ सपोर्ट टीम्स लाइक नेपाल एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑल ऑफ दैट इज गोइंग टू हैपन. So we are doing our share, but for that we also need a little bit of stability, and that's something that people need to understand here. A lot of people, in fact, have abused BCCI left, right, and center, that they are the ones who are completely monetizing the game. They are doing it very India centric, etc., etc. But ऐसा नहीं, they are doing their share. But हाँ वो धीरे धीरे ऐसा नहीं है ना कि हम इंग्लैंड की जाके मदद कर दें जो कि फाइनेंशियली स्टेबल है, कि हम ऑस्ट्रेलिया जाके मदद कर दे कि मतलब जो ऑलरेडी फाइनेंशियली स्टेबल है. ऑस्ट्रेलिया इज डूइंग देयर शेयर विद पापुआ न्यू गिनी, ठीक है, ऑफ कोर्स क्योंकि उनका ट्रेड रीजन वगैरह भी है, वो हमने पहले भी बात करी थी. सिमिलरली जो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा यार, म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा, हम भी करेंगे, हम क्यों नहीं करेंगे, और हम कर भी रहे. So again, the question is yes or no में जवाब देना. Should Indian players be allowed in other T20 leagues? मैंने बोल दिया उसका. मैंने yes or no में तो जवाब दे दे. इतना बोल दिया yes or no. टाइम ही नहीं है, अलाउ नहीं करता, अलाउ नहीं करता, आपका कैलेंडर अलाउ नहीं करता है. एंड आई थिंक एंड फॉरगेट अबाउट मनी, इट इज ओनली अबाउट यू कॉम्प्रोमाइजिंग टेस्ट. हम इतनी प्यूरिस्ट वाली बात करते हैं कि नहीं टेस्ट होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए. अगर आपको टेस्ट चाहिए, you cannot allow so many players to go out and play leagues. ये अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है क्योंकि आपका पूरा नॉट जस्ट इंटरनेशनल कैलेंडर बट ऑल्सो डोमेस्टिक कैलेंडर्स ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री इज ऑल जैम पैक्ड. सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट गोइंग आउट देयर. आप ये भी तो देखो ना, आपकी इंडिया में ही कितनी ग्रोथ हो रही है यार, तो लोग इंडिया में ज्यादा पैसा, एंड आंध्रा लीग नेक्स्ट 5 years मे बी, ठीक है, विल बी एबल टू पे much more than a BBL. So why would a player go on and play a BBL in the month of December or November when he's already gotten the money in September? It is as simple as that. So yeah, so that's one point I'll agree with, and I'll conclude this here is that BCCI has the financial capacity to pay its players. That means that unlike West Indies, where players don't get paid that heavily for playing for West Indies, rather they would play other leagues, shorter formats, earn a certain amount of income that gives them stability. Second is, if we do decide for players to play franchise cricket outside, then of course the red ball cricket of India might get affected, and we won't have the same pool of talent that we are so proud of. So these are two reasons why this thing is not there. In fact, see, BCCI allows you to play. It's just that after that you can't play for BCCI. You want to play other leagues, you play other leagues. We may not say no. Yeah, but after that, don't come and say, now I want to play India. That cannot happen. So हम वर्ल्ड चैंपियनशिप लीग नहीं खिला पा रहे यार महेंद्र सिंह धोनी को, आप क्या बात कर रहे हैं? दूसरी लीग्स तो हम वैसे भी नहीं खिला सकते. So that's one. Okay.
लॉट ऑफ हैवी डिस्कशन। कभी अंपायर को किडनैप होते हुए सुना है? नहीं सुना? ठीक है। 1955-56 में MCCA करके पेशावर में पाकिस्तान में टूर करने गया। ठीक है। वो लोग 2 टेस्ट मैच हो गए थे और ये शायद तीसरा टेस्ट मैच था। और MCC ए ऑलमोस्ट मैच हार गया था, एक दिन बाकी था। और डे का प्ले जब खत्म हुआ तो 8 रन चाहिए थे पाकिस्तान को जीतने के लिए, और हाथ में कुछ 8 विकेट थी। ठीक है। उस मैच में ना एक अंपायर था इदरिस बेग करके। तो इदरिस बेग ने ना 2-3 LBW डिसीजन दे दिए, तो MCC वाले थोड़ा चिढ़ गए कि यार ये ना गलत डिसीजन दे दिया उसने। और उन्होंने देखा कि थ्रू आउट सीरीज है ना गलत डिसीजन दे दिया इसे। दे फेल्ट कि यार अंपायरिंग सही नहीं है। उन्होंने क्या किया कि बोला दे यूज्ड टू डू दिस थिंग कॉल्ड वाटर ट्रीटमेंट, मतलब वो पानी फेंकते थे। तो पेशावर क्रिकेट एसोसिएशन का डिनर था उसी शाम। तो वो लोग सब गए। फिर डिनर चल रहा था, उन्होंने एक कमरे में जाके सबने बियर वियर पी, फिर डिनर के लिए गए। फिर उन्होंने देखा इदरिस बैग है वहां पे। तो डिनर खत्म हुआ तो उसने बोला इदरिस बैग को, मिस्टर बैग वुड यू लाइक टू कम टू आवर रूम फॉर अ ड्रिंक? बोला नो नो आई डोंट ड्रिंक, आई थिंक आई लीव। एंड इदरिस बैग लेफ्ट फॉर हिज होटल। ये लोग वापस कमरे में गए। उन्होंने बोला भाई देख यही चांस है, इसके बाद ये शायद अंपायरिंग करेगा नहीं करेगा हमें पता नहीं। ठीक है। तो ये लोग सब बैठ के, और टोंगा और घोड़ा गाड़ी होती ना, घोड़ा गाड़ी बैठ के इदरिस बैग के होटल में गए। उधर से इदरिस बेग को किडनैप किया पकड़ के, वो घोड़ा गाड़ी में बिठाया, अपने होटल में लेके आए। फिर उसको कमरे में लिया और उसको कुर्सी पे बिठाया। बोलता है सर व्हाट कैन आई गेट यू? इदरिस बेग वाज आल्सो अ फ्लैम्बॉयंट कैरेक्टर। ही सेड आई जस्ट हैव सम वाटर। पीछे से 2 लोग आए, उसके ऊपर बाल्टी फेंका और भाग गए। वाटर और ट्रीटमेंट। उसके और हाँ वाटर ट्रीटमेंट, और उसके बाद वो लोग हंसने लगे। एंड इदरिस बेग वाज फ्यूरियस। ही कॉल्ड एवरीवन इन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन द नाइट। MCC वाले पागल हो गए। The funny part about this is MCC did apologize for this to the Pakistan Cricket Board, saying, you know, sorry, ये वो हमसे गलती हो गया, ये वो. But the way they apologize is कि शायद थोड़ा मस्ती मजाक में ना थोड़ा सा ज्यादा हो गया, बट हम अगली बार ध्यान रखें. And in 1970, that is 15 years later, Idris Beg and the captain who did this, Donald Carr, met in a match in Dhaka. And suddenly there was a tap on the shoulder of Donald Carr, और एक प्लेयर बाल्टी लेके खड़ा था, और इदरिस बेग ने बोला विल दिस डू, एंड दैट इज हाउ द एंटायर इंसिडेंट एंडेड. सो हाँ ऐसा भी हुआ है कि एक अंपायर को किडनैप करके चली गई थी MCCA की टीम. The Imperial Cricket Council's members, MCCA kidnapped players, guys. They went through a lot of this thing for it. Okay. Finally, we've talked a lot about Indian domestic circuit and how it's going to pan out, etc., etc. I think we'll just take 5 minutes to appreciate 2 boys from Dominica, from the Windward Islands. Both of these guys, one scored a century. Kevin Hodge scored a century. Alec Althines, who's my favorite, has scored an 87. Alec Althines के बारे में, so I'll just take 1 minute. Alec Althines was a part of the 2018 Under-19 World Cup. He was the highest scorer. And remember, Shubman Gill was also a part of this. Alec Althines जब एक कैंप के लिए जा रहा था विंडवर्ड आइलैंड्स के, तो उस एक दिन पहले ना उसके घर पे हरिकेन आ गया. और इतना बड़ा हरिकेन आया कि इंटरनेट बंद, फोन बंद, टीवी बंद, उसके सारे इक्विपमेंट्स वॉश हो गए, पूरा घर बर्बाद हो गया. उसका एक जूता भी नहीं मिला. ठीक है. एंड फॉर 2 months ही वाज जस्ट वरीड कि अगर अंडर 19 का सिलेक्शन कैंप अनाउंस हो गया तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि बाकी के आइलैंड तो क्रिकेट खेल रहे थे. बट फॉर्चुनेटली इट गॉट शिफ्टेड टू नवंबर. After that, finally he went for the under-19 trials, got selected and played there. And he till date says कि अगर मैं वो हरिकेन सर्वाइव कर गया ना तो मैं कुछ भी सर्वाइव कर सकता हूँ. And at one point in time, he was trying to balance cricket and he also wanted to study environmental science. तो ये दोनों को बैलेंस करके भाई, और ब्रायन लारा से इंस्पिरेशन लेके, like Althines has played here, he's been appreciated by Ashwin, he's been appreciated by Lara, and the kind of innings he played there was outstanding. Ankit, what do you think? I was very happy to see them play. Same goes for the Kevin Hodge also. He was also part of the West Indies under-19. He also played under-19 World Cup. पर उसका कोई सेंचुरी नहीं था. उसने रन्स बनाए, डोमेस्टिक में रन्स बनाए हैं. दैट्स रीजन ही वाज देयर फॉर अ नेशनल साइड, बट ही नेवर मेड अ सेंचुरी. And when he came to the post-match presentation also, he appreciated the bowling of 96 or 90 mph. Yes, he was laughing. Kevin Hodge. So yeah, he said, we decided, let's stick around and see how it goes. And it came at very nice. अच्छा यार, उन्होंने टेम्परामेंट दिखाया लास्ट तक रुके. एंड दे प्लेड रियली फास्ट आल्सो यार. अगर ठीक है इंग्लैंड एक दिन में 400 रन बनाते हैं, दे हैव आल्सो शोन वी आल्सो डू हैव द कैपेसिटी टू मेक अ 400 इन अ डे. 300 कितना बनाया वो लोग ने?
350 300 plus runs है. 351. Yeah, with 5 wickets. So yeah. और एक और चीज देखी तुमने, क्या? कल पूरा दिन धूप थी, हाँ हाँ. I was going to आज ask you भी the है. same question. पूरा दिन धूप थी. और Do you आज think- भी है. And when it comes to the Trent Bridge, वो बैट्समैन पैराडाइज है. एक बार धूप निकल गई अच्छा तो भाई बैटिंग के लिए बेस्ट है. पर मेरे को एक So और that is चीज what my जाननी next है, question is to you. मुझे एक और Sorry. चीज जाननी है. हाँ. You know, all this talk about baseball etc. ठीक है, बेसबॉल ने 400 रन बनाया, ठीक है, फिर वेस्ट इंडीज पर 3 4 84, इन लोगों ने क्या कहते हैं खतरनाक पार्टनरशिप लगाई, फिर उसके बाद जाके कहीं 250 के आसपास के कहीं मतलब विकेट गिरा इन लोगों का. कल फिर उसके बाद ना जेसन होल्डर और फिर वो काफी टिक गया, ठीक है. हाँ. वेस्ट इंडीज कुछ 290 के स्कोर पे था. मुझे ये जानना है कि उस टाइम पे इंग्लैंड के प्लेयर्स क्यों बोल रहे थे क्राउड को कि अब तुम क्या कहते हैं थोड़ा सा हमें चेयर अप करो कि हमें विकेट नहीं मिल रहा है ये वो. सो आई फ्रॉम व्हाट आई फील लाइक दैट जो भी हमें बताया गया है कि बेसबॉल वाज अबाउट entertaining the crowd, but here I think the players were asking the crowd to entertain them so that they could get a wicket. What is happening? यार हैपनिंग यही है कि स्टोक्स को बहुत फेवर करता है वो पिच. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. आप कोई भी स्टैट्स दिखा के देख लो. अगर स्टोक्स वहां पे खेल रहा है, मैच जिताया है, रन्स बनाया है, कोई भी इनिंग हो, चाहे वो फर्स्ट इनिंग हो, सेकंड इनिंग हो, और अच्छे मैचेस जिताया है, और ट्रेंट ब्रिज हमेशा उनका साथ देता है. एशेस के टाइम पे सबको याद ही होगा क्या हुआ था उस जगह पे. सो या दैट्स द रीजन ही वाज सीकिंग क्राउड से कि भाई थोड़ी तो हेल्प कर दो यार, थोड़ा तो मोराल हाई कर दो हमारा. स्पिनर ला लिया, फास्ट बॉलर ला लिया, एंड यार वो भी इतनी फास्ट डाला बेचारा लिम्प करना शुरू कर दिया. गॉड पता है भाई आज बॉलिंग डालेगा कि नहीं डालेगा किसी को नहीं पता. पर पता है बेसबॉल को मैंने थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया. A lot of people say, is baseball an approach? Is baseball a style of play? No, baseball is a defensive mechanism. It's just that it's aggressive. जैसे शेन वॉर्न जब आया था 2005 की एशेज में, एंड्रू स्ट्रॉस को समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, इसको खेलूं तो कैसे खेलूं मैं. फिर एंड्रू स्ट्रॉस वेंट डाउन, दे हैड अ स्पेसिफिक बॉलिंग मशीन दैट रेप्लिकेटेड शेन वॉर्न स्पिन. और वो क्या कर रहा था, स्टेप आउट होके मार रहा था, वो मार रहा था. ठीक है, तो एंड्रू स्ट्रॉस ने भी यही किया था, स्टेप आउट होके शेन वॉर्न को अटैक किया था. केविन पीटरसन ने अटैक किया था, एंड्रू फ्लिंटॉफ ने अटैक किया था. अटैक मतलब बिफोर द बॉल स्पिन्स they went to the length of the ball and whacked it. ठीक है, so it's about the choice of shot that you have. For example, if it's a length ball, you probably defend it, you probably edge it, or it'll go past your bat. Instead of defending that, probably you could play it on the up and give it a push, you'll get a boundary. So that's what it is. It's about what kind of shots will you now play compared to anything else. Jesse, the second wicket that went off Mikhail Lewis, he also tried to play a big shot. वो टॉप एज लग गया. So this is only an opinion. This is what you think baseball is. no, yeah, I mean, baseball, as you said, the aggressive approach. Others feel baseball is about the mindset to win from any situation. Yeah, that's how everyone wants to win, no? So exactly. baseball. And Jeffrey Boycott ने बहुत अच्छा बोला. If you want to entertain, circus is the place. This is not the place to entertain. बहुत अच्छा बोला जेफरी बॉयकॉट ने. मुझे वो चीज काफी रेजोनेट किया. मैं कहा हाँ यार ये बात तो सही कर रहा है. चाहे चलो ठीक है, व्हाटएवर जेफरी बॉयकॉट वुड हैव सेड इन द पास्ट, ठीक है, हम लोगों को अच्छा नहीं लगा रहेगा बिकॉज ही सेड अ लॉट अबाउट इंडिया एंड अगेंस्ट इंडिया. बट एक चीज बहुत अच्छी बोली है इंग्लैंड के लिए कि मतलब दिस इज नॉट द प्लेस टू एंटरटेन, वी वांट. एंड यार एक चीज जरूर है कि जब तक आप जीतते रहोगे ना तब तक आपको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा. अरे that is what I'm asking. When you say as a player, I want to entertain, I want to enjoy my game, you will only enjoy your game if you're taking wickets and scoring runs. You are not going to enjoy your game if you're getting thrashed. And you're playing for your nation, so it's very important. If you want to entertain them, you'll still have to win, right? Absolutely. So that's the point. Result has to say 1-2-1 or 3-1 or you have to take 10 wickets, 20 wickets to win a test match. It is as simple as that. आपको 20 विकेट लेनी है अब जैसे भी लो. हवाबाजी नहीं करनी है. एशेस के पहले दिन मतलब 393 पे डिक्लेयर कर दिया कि मैं 2 ओवर डालूंगा, ये वो थोड़ा हवाबाजी हो गया मेरे हिसाब से. I see, it makes the game interesting.
it gives them a chance to take a wicket at the end of. But you end up on the losing side. yeah. But you end up on the losing side. So you might as well That's- declare at 350 if you That's want to. the downside. That's the downside of playing cricket like this. Exactly my point. You have And to. sometimes it can be too much of a downside. Like you You go to play India, to you win. lose 4-1. But yeah, We talk India so much में about अच्छा नहीं the खेले वो Australian. लोग. We talk so much about the Australian mindset that they play to win, they play to win. What are England doing here? Entertaining the crowd and not winning? Is that going to help them? Is that going to help their cause? Or this entire phenomenon of baseball? No. I'm sorry. Results matter. थोड़ी टर्म्स लाइक मेंटल डिसइंटीग्रेशन के लिए भी होती है. जसप्रीत बुमराह ने बोला था ना, अरे ये लोग तो मार ही नहीं रहे. ये लोग तो मार ही नहीं रहे, मार क्यों नहीं रहे ये लोग. But I think they continue to play like this. धीरे धीरे फिर उसके बाद डिपेंड करना चालू किया ना. आफ्टर द फर्स्ट टेस्ट उनको लगा कि नहीं भाई ओली पोप ने मनाया है. फिर उसके बाद सेकंड टेस्ट में क्या हुआ, मारने की कोशिश करी, गया. फिर उसके बाद धीरे धीरे थर्ड टेस्ट में इनको एहसास हो गया कि नहीं भाई अब आराम से खेलना पड़ेगा. Joe Root scored a brilliant 100 in run. 100, yeah. The comeback of Joe Root, वो रिवर्स को बंद कर दिया उसने उस टाइम पे. Because he यार, played देख, two innings. जो रूट ऐसा बैट्समैन है ना यार, जो टेक्स्ट बुक प्लेयर है, इतना अच्छा खेल रहा था, क्या जरूरत थी इसको बाहर निकल के मारने की. बेसबॉल. वही मैं बोल रहा हूँ, वो नहीं है जो रूट. ऐसे बोल दिया भाई अभी 5 डॉट हो गया, अभी मार रहा हूँ. 5 हाँ. डॉट हो गया, तुम्हारे ऊपर प्रेशर आ रहा है, प्रेशर आ रहा है. व्यूअरशिप कम हो गया. 10 लोग देख रहा था, अभी 8 लोग देख रहा है. यार टॉम हार्टली को क्यों नहीं खेल रहा है? कितना अच्छा बॉलर है यार, मेरे को बहुत अच्छा लगता है टॉम हार्टली. ही इज अ गुड बैट्समैन आल्सो. आई डोंट नो व्हाई दे गो विद एन ऑफ स्पिनर समटाइम्स. और शोएब बशीर के बारे में बेन स्टोक्स को पूछो ना कि आपको क्या अच्छा लगता है, बोलता है लंबा है. हाँ इसीलिए तो लिया है उसको. बोला एक्स्ट्रा बाउंस. हाँ एक्स्ट्रा बाउंस. अरे लेकिन they are preparing him for the Ashes. एक्स्ट्रा बाउंस के लिए आपको फॉरवर्ड भी तो खिलाना पड़ेगा ना बैट्समैन They को. are preparing him for the Ashes ना. They are not thinking about this series because this series is already in their kitty according to them. They are going to win it 3-0. They are preparing for the Ashes where they will bounce. एक लंबा बॉलर आएगा. हाँ बाउंसर डालेगा. जिमी एंडरसन को क्यों रिटायर कराया? खेलेगा एशेज तक? नहीं मैं तब तक नहीं खेलूंगा पर थोड़ा टाइम खेल सकता हूँ. नहीं लास्ट टेस्ट मैच बाद. Gus Atkinson had the new ball only the 8th time in his career in last year, but yeah, you could see on a flat. Yeah, इसलिए वो नासिर हुसैन भी बोल रहा था, let's see how England challenges itself on a flat track. But he bowled the 83rd over yesterday. New ball सबसे पहले उसी को मिला. 83rd or 84th? नहीं फर्स्ट इनिंग में जब वो न्यू बॉल लेके आया था. भाई माकूड कल को क्या हो गया? माकूड को कल बोल तो रहा हूँ. क्या हो गया सबको? क्या हो गया कल भाई? माकूड 90. वो बेचारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता है आई हैव अ वाइफ एंड किड एट होम. वही तो मैं बता रहा था तेरे को. हाँ. Anyways, hopefully we get to see a little bit of baseball from one of the Ranji Trophy sides just to make it entertaining for us. But thank you guys for joining us on this podcast. Just to let you know that we're obviously on Instagram, Facebook, X, but we are also now on Spotify, on Amazon Podcast, and on Google Podcast. No, not on Google Podcast. Sorry, I'll repeat that again. We are on Amazon. We are on Spotify. So if you guys are traveling and are not really interested in looking at our faces, which you understand why, you can always listen to our voices. If you find that annoying, then only you can watch the video by muting it. Anyways, thank you very much, guys. It's been a long podcast, but we don't often meet now as we used to. It's 3 days a week. Tuesdays, Thursdays, and Saturdays. Tuesdays and Thursdays are mostly for international cricket. Saturdays are mostly for the domestic series of India. Okay, thank you very much. Have a good night.